ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। यहीं से स्टार्ट करेंगे। बिलाल, आपका और कोई सवाल नहीं है इसमें? सर समझ में आ गए सर। थोड़ा सा आसान था। नाउ वी आर मूविंग अहेड द रेस्ट ऑफ द टू मोर प्रॉपर्टीज। वन प्रॉपर्टी which primarily when we expand the exponent and write exponent in the form of a polynomial. So for every n by n matrix, for every n by n matrix A, there exist n scalar functions alpha 0, alpha 1, for which we can primarily write the exponential function in this way. ये हम जानते हैं कि we can primarily expand an exponential function. Similarly, on the sixth property, for every n by n matrix, A can be written as ETA into A. So there is a commutation between commutation law which hold here. Now the computation of matrix exponential using the Laplace transform. अगर आपको याद हो तो we are using two transforms. One is the Laplace transform and another is the Z transform. Laplace transform is used in the case of the continuous, whereas the Z transform is used for the case of discrete linear time systems. So the Laplace transform can be used to solve the equation in this form, जिसमें एक तरफ जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव है. Remember, जब हम डेरिवेटिव पे Laplace transform अप्लाई करते हैं, so we have a relationship which is independent of this derivative. So it is an approximation which can be used to solve the differential equation. जब हम इस पे Laplace अप्लाई करेंगे, Laplace on this derivative, so we write the expression of derivative in the Laplace, and after some substitutions we get primarily this relationship. We come out of this relationship, जिसके अंदर जो है वो हमें प्राइमरली जो है इक्वेशन जो है जिसको सॉल्व करना. अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले जो हम करके आ रहे थे, ए माइनस लैम्डा आई एंड द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर रहे थे हम. सो द सेम रिलेशनशिप, अगर आप गौर से देखें, द सेम रिलेशनशिप इन विच द लैम्डा इज प्राइमरली replaced with S, and also there is A which appear. So this is the relationship in which the matrix can be primarily, we can find the value of the exponent or the exponent matrix exponential in terms of Laplace transform. अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमें सिर्फ इस पे Laplace इनवर्स लगाना है और उसके बाद we get the value which is primarily or an expression, एक mathematical formula जो कि इस चीज से लिंक करता है. अगर कोई चाहे जो थोड़ा मैथमेटिक्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो इन तमाम स्टेप्स को देख सकते हैं कि स्टेप्स कैसे जो है वो लिए गए हैं. They are linked with the Laplace transform is applied on the derivative. So the importance of the characteristic polynomial. इससे पहले हम कुछ टाइम पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि how we primarily find the inverse. और किसी भी मैट्रिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तो A दिया हुआ है ना, अगर we take the matrix M, then the M inverse, M is any matrix, we can write it 1 over the determinant of M into the adjoint of M. वही जो
इससे पहले हम एक एग्जांपल भी कर चुके हैं इसकी। तो द सेम फार्मूला कैन बी यूज्ड हियर टू फाइंड द इनवर्स। So the determinant can be primarily in the form of exponent a polynomial, and that polynomial can be represented in the form of the factors. फैक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये भी हम जो है वो एक एग्जांपल में हम देख चुके हैं कि हाउ वी कैन प्राइमरली राइट इन द फॉर्म ऑफ ए फैक्टर। और इवन मैं देख रहा था कि देयर आर ऑनलाइन टूल्स जो कि जो फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन को। So is the characteristic polynomial of A where the roots are the eigenvalues of A, and similarly the adjoint is the adjoint of the matrix whose entries are the polynomials in S of degree n-1 or more। वो जो हमने primarily स्टडी किया था ना प्रॉपर फंक्शन, और आपका सवाल भी था कि स्ट्रिक्टली प्रॉपर फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन के केस में। No, this is just a mathematical way to represent that how we primarily do the partial fraction expansion of a function, और उस फंक्शन को जो है वो किस तरीके से हम जो है वो एक ऐसी टर्म्स में लिख देते हैं जिसके ऊपर कांस्टेंट होते हैं, ऊपर जो है वो सारे कांस्टेंट वैल्यूज आ जाती हैं। ये इसलिए क्योंकि जब हम इस पे अप्लाई करेंगे ना लैप्लास इनवर्स, जब लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, सो देन वी कैन इजीली यूज द आइडेंटिटीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और वो आइडेंटिटीज क्या हैं? जब हम इसका लैप्लास ले रहे होंगे इस पूरे एक्सप्रेशन का लैप्लास इनवर्स, तो हम प्राइमरीली ये जो राइट हैंड साइड है इसका लैप्लास ले रहे होंगे, और जब राइट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन है इसका जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो इंडिविजुअली यानी इंडिविजुअली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसका जब हम लेंगे तो s माइनस ए कांस्टेंट वैल्यू जो कि इगन वैल्यू है, सो इट विल बिकम आफ्टर टेकिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म इट विल अपीयर इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। तो इसी तरीके से ये a11 e lambda 1 t, और जब स्क्वायर होगा तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद t, और जब इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी एंड फाइनली वी गेट एन एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास एक्सपोनेंट होंगे और मल्टीपल होंगे टाइम। चूँकि ये जनरलाइज है, हम एक इस पार्शियल फ्रैक्शन का अगर हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कर लें तो उसमें हमें बहुत आसानी से जो इसके जो स्टेप्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। सो इसमें जो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस जो है उस केस में चूँकि y को भी हमें लेना है, वो करना है, क्या कहते हैं, टेक केयर करना है। सो द आउटपुट जो कि ये थोड़ा देर पहले हम इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रल ऑफ बोथ साइड्स, सो इट कन्वर्जेस टू द फोर्स रिस्पॉन्स, जिसमें ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये प्राइमरीली जो है ये ख़त्म हो जाएगी, और ये एक्सप्रेशन जो है ये प्राइमरीली जो है ये बन जाएगी जो कि होमोजेनियस रिस्पॉन्स। होमोजेनियस रिस्पॉन्स अगर आपको याद हो तो प्राइमरीली जो है आउटपुट ऑफ ए सिस्टम इज सम ऑफ द होमोजेनियस रिस्पॉन्स एंड द सम ऑफ द फोर्स रिस्पॉन्स। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो वी आर प्राइमरीली इस एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो दिस एक्सप्रेशन इज प्राइमरीली फोर्स रिस्पॉन्स, जस्ट उस रिलेशनशिप को हाईलाइट कर रही है ये स्लाइड एंड नथिंग एल्स। ये चीज़ें हम पहले से पढ़ के आए हैं, कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, बट देयर रिपीटिशन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस टाइम में जो एक्सपोनेंट मैट्रिक्स है उसकी बात हो रही है।
Similarly, this slide summarizes the mathematical formulation which is valid for the discrete time case. और डिस्क्रीट टाइम केस में जो एक चीज़ हम नोट करेंगे वो ये है कि द इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म। थोड़ी देर के लिए मैंने नोट्स को हाइड कर दिया है ताकि हम इस स्लाइड को जो है वो देख सकें। तो इसमें अगर हम देखें तो वी हैव द जी इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो उस सूरत में हमें जो है वो जेड जेड ट्रांसफॉर्म जो है उसको और उसकी आइडेंटिटीज जो है उनको यूज करने की जरूरत है। Now moving towards the practical exercises which are given in the book, हम क्या कर रहे हैं, हम जो किताब के अंदर जो हार्ड एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं को ज़्यादा फोकस करते हुए कर रहे हैं, उन्हीं को फोकस करते हुए जो है वो इन चीज़ों को सीख रहे हैं। So the practical exercise shares the reconstruct a matrix from its exponential. So the matrix exponential form is given and we are to find this matrix A. और इसका जो प्राइमरी हम यूज करेंगे वो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे देन वी आफ्टर टेकिंग द डेरिवेटिव वी कैन गेट दैट मैट्रिक्स एंड दैट मैट्रिक्स अपीयर एज ए मल्टीप्लिकेशन विद द एक्सपोनेंट इटसेल्फ। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना है एंड देन वी गेट द ए आ जाएगा उसके। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। So in next slide, we take the derivative of this term, और जब हम इसका derivative लेते हैं, we get this matrix, which is the derivative of this। जब हम derivative लेंगे इसका, तो हमें पता है कि ये दो टर्म्स हैं, तो पहले एक टर्म को छोड़ देंगे, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, और उसके बाद जो है वो पहले टर्म वैसे ही मल्टीप्लाई होगी और प्लस करेंगे हम जो जो अब रिवर्स करेंगे, यानी ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यू भी उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम जो है वो पहले एक 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 जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं और फिर ऐड करते हैं, अब इसमें दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम ये इस फार्मूला की मदद से हम जो है वो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, then we get this expression, and this expression is equal to a multiplied with the same matrix। ये same matrix अगर आप देखें, same matrix is written here। So in particular when we take t is equal to 0, अगर हम इसमें t जो है वो 0 पुट कर दें, then it lead us to this formulation which is primarily, तो यहाँ पे t is equal to 0 है, t is equal to 0 is an identity matrix। तो जब हम t की वैल्यू 0 लिखेंगे तो यहाँ a इंटू आई आ जाएगा, a इंटू आई आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप t की वैल्यू 0 लिखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और e की पावर a t e की पावर 0 ये 1 हो जाएगी। इसी तरीके से आप देखें ये वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ से 2 प्लस a आ जाएगा और यहाँ से माइनस 1 हो जाएगा। And similarly, when we put t is equal to 0, we get 4 here and a minus 2. So a simple procedure in which we have to just take a derivative and put t is equal to 0 will lead us to know the A matrix by this expression. So what we have to do is, the first step is take derivative of ETA, and t is equal to 0. When the value of t is 0, then this expression becomes A. So this is the only formula which is used here, and
is primarily described here in this problem. जी स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है इस पॉइंट पे? जी बिलाल, आपके ज़हन में कोई सवाल है? नहीं सर। जी सवाल है तो पूछें। ओके, अवैस कह रहे हैं कि वो ठीक है, आगे बढ़ जाए। नुमान आप बताएं, आपके ज़हन में कोई सवाल है? नो सर, क्लियर है सर अभी तक। आगे चलते हैं। शुक्र है थोड़ी सी चीज़ें आसान हैं। बिलाल थोड़ा देर पहले कह रहे थे कि थोड़ा ये चीज़ें थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज। असल में ये मैंने किताब जो है ये कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भेजी भी थी कि इस किताब को ज़रा थोड़ा सा एवेलुएट करके बता दें कि जो है वो ये किताब एज ए टेक्स्ट बुक कैसी है। तो एक का रिस्पॉन्स आया ये थोड़ी सी हार्ड है और एक ने रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। So the next is solution to linear time invariant systems. अच्छा, मैं चाहूँगा कि यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें तकरीबन 15 मिनट्स तक का, और उसके बाद फिर हम जो है इस फॉर्म को समझें। दिस इज़ नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, द जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हाउ प्राइमरीली इट लीड्स टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। ठीक है, तो यहाँ तकरीबन हम 15 से 20 मिनट कर लें, ज़्यादा मुनासिब है। तकरीबन 15 से 20 मिनट का एक वक्फा ले लेते हैं, नमाज पढ़ लें, अगर कोई खाना वगैरह खाता है तो खाना वगैरह खा लें। जी बेटा। सर आप एक एसएमएस कर दिएगा सर वो ग्रुप के ऊपर ना, हम ज्वाइन हो जाएंगे फौरन ही। मैं मैसेज कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।